ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू भी 3 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 इज बोन, नंबर 2 इज कार्टिलेज, and number 3 is liquid, that is blood and lymph. So we will start with the cartilages. Cartilages are solid and flexible. It consists of dense network of collagen and elastin. Few cells are large and have extracellular matrix. Most cartilages are replaced by bones in adults, and most cartilages are replaced by bones in adults. They do not have any blood supply. And no nerves, and its cells are called as chondrocytes. Let me explain you with the diagram. So here you can see these are the chondrocytes, and these are the collagen fibers. कि कार्टिलेज का सेक्शनल व्यू है. कार्टिलेजेस सॉलिड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं. इनके अंदर कोलाजन और इलास्टिन प्रेजेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में. इनके कुछ सेल्स बहुत बड़े होते हैं लाइक कॉन्ड्रोसाइट्स, एंड बहुत सारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जहाँ पे कोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. इनके पास ना ही कोई ब्लड सप्लाई होती है, ना ही कोई नर्व की सप्लाई होती है, एंड इनके सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके अंदर मोस्टली कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, बट बड़े होते होते वो कार्टिलेजेस बोन्स के साथ रिप्लेस हो जाते हैं. कार्टिलेजेस के एग्जाम्पल हैं टिप ऑफ नोज, ईयर जॉइंट्स, लिम्स एंड हैंड्स joint in adults. And cartilages को further divide किया है 3 types में, which are hyaline cartilage जो कि long bones में present होता है, fibrocartilage and elastic cartilage. We will not go into the details of it.
सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्टिलेजेस. टिप ऑफ नोज, ईयर्स में जितने भी जॉइंट्स होते हैं, लिम्स और हैंड्स में जितने भी जॉइंट्स होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जितने भी जॉइंट्स होते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ द कार्टिलेजेस. एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस: हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रोकार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज. सो विद दिस वी कंप्लीट कार्टिलेजेस. Now we'll move on to our next topic, that is the bone. Bone is another main specialized type of connective tissue. There are, as we all know, there are 206 types of bones, 206 bones in adult human. They are rigid and non-pliable. Pliable means non-flexible. They are rich in calcium salts and they are rich in calcium salts, which gives it strength. It provides structural framework to body. It protects soft tissues and organs. Bone cells को हम बोलते हैं, bone cells are called osteocytes. Examples of bone we all know: skull bone, bones of limbs, vertebral column, etc. This is the section of the bone. This is the osteocyte, that is the bone cell, and इसके आसपास ये जो आपको concentric rings दिखाई दे रहे हैं, these are the lamellae, and ये जो इनके बीच में खाली space है, it is lacunae. So lacunae के अंदर ही osteocyte present होता है. This is a section of bone. So हमारी बॉडी के अंदर टोटल 206 बोन्स होती हैं इन एडल्ट्स. ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड होती हैं एंड नॉन प्लायबल होती हैं एंड दे आर वेरी हैवी. 80% ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेट इज ड्यू टू द बोन्स. दे आर रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स, जिनकी वजह से उनको स्ट्रेंथ मिलता है. दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग एंड ये बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं. ये हमारे सॉफ्ट टिश्यूज और ऑर्गन्स को बचाती हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव लंग्स एंड हार्ट in this portion, and it is surrounded by the rib cage. So rib cage is made up of bones and it protects our soft tissues like lungs and heart, which are the very vital organs. Bone cells को हम osteocytes बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया. एंड बोन्स के एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी बोन्स होती हैं: स्कल बोन, बोन्स ऑफ लिम्स, वर्टिब्रल कॉलम, एटसेट्रा एटसेट्रा.
So this is all about our second specialized connective tissue, that is the bone. Now the specialized connective tissue number 3 is the liquid connective tissue. And these are of two types, blood and lymph. Lymph is tissue fluid flows in lymph vessels, contains minerals and excretory substances. So the lymph is a tissue fluid. इसका एक अलग से lymphatic system होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ये उसमें प्रेजेंट करता है, इसमें ट्रैवल करता है, and it contains minerals and excretory substances. Blood is the main body fluid. इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा. प्लाज्मा इज पेल येलो लिक्विड एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं. फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा. फॉर्म्ड एलिमेंट्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, RBCs, WBCs and platelets. RBCs help in the transport of oxygen and CO2. WBCs are responsible for immunity and platelets are responsible for clotting. सो ब्लड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू होता है. ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है एंड उसका बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जो लंग्स के अंदर मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इट इज ड्यू टू ब्लड, क्योंकि ब्लड ही कैरियर होता है ऑक्सीजन का एंड ट्रांसपोर्ट करता है CO2 को. एंड WBCs हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, बाहर के जितने भी जर्म्स एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं उन सबसे बचाते हैं. एंड प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग, लाइक इफ वी हैव एन इंजरी एंड ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग, सो ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, ब्लड जो जमता है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स ओनली. सो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का जो लिक्विड पार्ट है उसमें सिर्फ ब्लड एंड लिम्फ आते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़े 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, बोन्स, कार्टिलेजेस एंड लिक्विड. सो विद दिस वी फिनिश आवर कनेक्टिव टिश्यूज.